besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. मुबारक है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया और परवरिश की। मगर मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हमें दुआ करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाई। जब दुआ करो कहो, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें आज दे, हमारे गुनाह माफ़ कर जिस तरह हम अपने कसूरवारों को भी माफ़ करते हैं। हमें भी आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। कलाम मुक़द्दस में मरक़ूम है कि खुदावंद खुदा मसीह को भेजेगा ताकि वो गुनाहगारों को बचाए और खुदा के साथ उनके रिश्ते को बहाल कर दे। यसू मसीह की ज़िंदगी वाज़े तौर पर इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाला निजात दहिंदा वही है जिसका खुदा ने वादा फरमाया था। यशायाह नबी की मार्फत लिखा है कि एक कंवारी हामला होगी और बेटे को जन्म देगी, और ऐसा ही हुआ। मुक़द्दसा मरियम जो कंवारी थीं, क़ादिर मुतलक की कुदरत से हामला हुई और उनसे यसू अल मसीह पैदा हुए। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यसू अल मसीह की पैदाइश खुदा की तरफ से इस बात की अलामत थी कि यही बच्चा मसीह है जिसे खुदावंद खुदा ने अपना बेटा कहकर पुकारा है। जब लोगों ने यसू को देखा तो उन्होंने खुदा की कुदरत और क़ुव्वत को देखा। आपने लोगों को शिफा बख्शी और उनके गुनाह माफ किए। आपने उनसे अपनी अबदी बादशाहत में जगह देने का वादा फरमाया। यसू ने तमाम बनी नौ इंसान की खताओं के वास्ते अपनी जान फिदिये में दी। यसू मसीह मरने के बाद फिर जिंदा हुए, जो इस बात की दलील है कि उसकी कुदरत मौत के इख्तियार से कहीं बढ़कर है। यसू अल मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान देने और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यसू मसीह की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नबियों की मार्फत पेशनगोइयां की गई थीं। यसू मसीह की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि नबियों की मार्फत खुदा का कलाम सच्चा और ला तब्दील है। जैसा कि नबियों की मार्फत फरमाया गया था कि कलाम खुदा हर ऐब से पाक और अबदी है। यसू मसीह ने खुद फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम अबद तक कायम रहेगा। इब्तिदा में खुदा ने आदम और हव्वा को पैदा किया ताकि वो खुदा की रफाकत में खुश रहें, लेकिन उन्होंने
खुदा पर भरोसा ना किया और उसकी हुक्मदूली की, उनकी इस नाफरमानी ने उन्हें खुदा से जुदा कर दिया। कलाम मुकद्दस में यह लिखा है कि सब इंसानों ने गुनाह किया और गुनाह का नतीजा मौत है। गुनाहगार लोग खुदा की हुजूरी में ठहर नहीं सकते। मगर जिस तरह खुदा ने एक मेंढा मुहैया किया कि वह अब्राहम के बेटे की जगह कुर्बान हो, उसी तरह यसूल मसीह को दुनिया में भेजा कि वो बनी आदम की खातिर कुर्बान हो। यसू मसीह की जिंदगी, मौत और जी उठने की सच्चाई पर ईमान लाने की वजह से बनी आदम का रिश्ता खुदा से बहाल हो गया। पतरस ने फरमाया कि यसू मसीह ही वो शख्सियत हैं जिनके मुतालिक अंबिया ने फरमाया है कि जो कोई यसू पर ईमान लाएगा खुदा उसके गुनाह माफ कर देगा। लिहाजा वो जो यसू पर ईमान लाते हैं जहन्नुम की सजा से बच जाएंगे और अबद तक खुदा की हुजूरी में रहेंगे। जब यसू मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि सारी कौमों में मेरे नाम से इस बात की मनादी की जाएगी कि खुदा उन सब के गुनाह माफ फरमाएगा जो अपने गुनाहों से तौबा करते, मेरे जी उठने पर ईमान रखते और खुदा की तरफ रुजू करते हैं। यसू ने यह भी फरमाया कि मैं खुदा का पाक रूह भेजूंगा ताकि वो मेरे लोगों के साथ रहे और उन्हें सच्चाई की राह दिखाए और उस पर चलने की कुव्वत बख्शे। जब एक गुनाहगार औरत ने अपने गुनाहों से तौबा की और यसू की पैरवी करने लगी तो यसू ने उससे कहा, तेरे गुनाह माफ हुए क्योंकि तुम मुझ पर ईमान लाई हो, इसलिए तुमने निजात पाई। यसू ने फरमाया कि जब लोग हकीकत में खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो इस बात का बयान सबूत है कि खुदा ने उनके गुनाह माफ कर दिए हैं। यसू अल मसीह ने लोगों को दावत दी कि मेरे पीछे हो लो। जब सलीब पर लटका हुआ मुजरिम यसू पर ईमान लाया और कहा कि यसू मुझे बचा, तो यसू ने फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जिन लोगों ने मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लिया है अपने रिश्ते की इब्तिदा इन अल्फाज से कर सकते हैं, ए खुदावंद खुदा, कायनात के मालिक, तू पाक और अजीम है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे एक बाप की तरह प्यार करता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तेरे हुक्मों की नाफरमानी की है और तेरे खिलाफ गुनाह ही किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने यसू को भेजा ताकि वो मेरी खातिर सलीब पर मौत का वारा करे और मुर्दों में से जी उठे। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि यसू ने मेरे गुनाहों की खातिर सजा पाई। मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूं और मसीह यसू को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा मानता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे गुनाह माफ कर दिए और मेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि मैं हमेशा तेरी बादशाही में तेरे साथ रहूं। ऐ खुदावंद खुदा, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अपना रूह पाक बख्श दे जो मेरे साथ रहे और तेरी राह दिखाने में मेरी रहनुमाई फरमाए। रूह पाक मुझे कुव्वत बख्शे कि मैं पूरे दिल से तुझसे मोहब्बत रखूं और तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। ऐ खुदावंद खुदा, काश कि इस दुनिया में हर जगह लोग तेरी हमद व तारीफ करें। आमीन। यसू अल मसीह ने अपने लोगों के मुतालिक फरमाया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरी पैरवी करती हैं। यसू अल मसीह के लोग उन सब से रफाकत रखते हैं जो यसू से मोहब्बत रखते और हर रोज उससे हम कलाम होते और कलाम में मुकद्दस का मुताला करते हैं। वो उसकी पैरवी करते और उसकी मोहब्बत का दूसरों से बयान करते हैं। यसू रूहुल कुद्स के वसीले से जो उसके लोगों के दिलों में रहता है उनकी मदद और रहनुमाई फरमाता है। जब यसू अपने आसमानी तख्त की जानिब बादलों पर उठाए गए तो उनके पैरोकारों ने उनके इस कौल को ज़हन नशीन कर लिया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और याद रखो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं।